related to testing of hypothesis, related to t-test and related to f-test. This is most important for this paper. So this is your assignment. So today I am just going to tell how to solve the ANOVA, one-way ANOVA. That previously we have discussed something about it. Okay, I am just move on some more steps in solving the ANOVA, how to solve in Excel. You just see the screen carefully and do remember that you have to complete your assignment after the, you have to submit the assignment after the Diwali vacation. Okay? So, हेलो मैम yes? एक में लिखना है assignment file में ही आप submit करोगे. After this class, I will make one task for you in Google Classroom. So you have to submit or upload your papers or files on the same section. Okay? Okay. Now we were discussing some problem based on one-way ANOVA here, and this was the problem. You remember this thing? Question number 9. Manufacturers of gold bulbs always seem to be claiming that their ball goes for, not this one. This one. Question number 8. Do you remember this? Yes ma'am. Yes, 4 brands of flashlight batteries are to be compared at the testing. Each brand in 5 flashlights. 20 flashlights are randomly selected and divided randomly into 4 groups of 5 flashlights each. So this is the table given, data table given, brand A, brand B, brand C and brand D. Each brands having the 5 observations. The observations are taken randomly and these observations are the lifetime of each battery. So each group of flashlight uses a different brand of batteries. The lifetimes of the batteries to the nearest hours are as follows. So these are the 42 hours, 30 hours, 39 hours, 28 hours, 29 hours for brand A. So these are the data sets representing the brand A, brand B, brand C and brand D lifetime. Okay. So now we have to compare it. Preliminary data analysis indicate the independent samples come from the normal population with equal standard deviations. We know these the equal standard deviations are there. At the 5% significance level, does there appear to be differences in mean life among the 4 brands of batteries? हमें ये टेस्ट करना है कि इनकी जो मीन लाइफ है, एवरेज लाइफ है, वो एवरेज लाइफ जो है वो सेम है या नहीं है, डिफर कर रही है. दिस टेस्ट वी हैव टू डू. ओके, तो इन एक्सेल वी विल डू दिस. ओके, अगर आप लोग क्लास में होते तो आपको कैलकुलेटर दिया जाता है. यू हैव टू डू द स्टेप वाइज कैलकुलेशन जैसे यहाँ पे दिया गया है. आपको स्टेप वाइज कैलकुलेशन इस पीडीएफ में दिख रहा होगा. ठीक है, और लास्ट में अनोवा टेबल है. ये आप जब कैलकुलेटर पे कैलकुलेशंस करते हो तब आपको इस स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं. बट ऑनलाइन क्लासेस हैं, यू कैन यूज एक्सेल शीट इजीली और आप लोग एक्सेल पे कैलकुलेशन इसको आसानी से कर सकते हो. तो आप लोगों ने ये डेटा लिखवाया था मुझे ABCD. यू रिमेम्बर दिस थिंग? याद है या नहीं? Yes ma'am. Okay. So we go in Excel sheet, write the data here, type the data here, go with data. डेटा के पास आपको एक डेटा एनालिसिस करके एक विंडो आएगा, इस पर आप क्लिक करोगे. ओके, what we are doing, we are applying one way ANOVA in this data. आपके पास डेटा एनालिसिस और डेटा टूल्स आ जाएगा. डेटा टूल्स में वन वे ANOVA किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंगल फैक्टर को. ANOVA सिंगल फैक्टर. देखो ब्लू लाइन से, ब्लू लाइन में हाईलाइटेड है ये सिंगल फैक्टर. इसे ओके किया. ओके, इसे ओके करने के बाद यहाँ पे 2 सेक्शन आ रहे हैं, इनपुट और आउटपुट ऑप्शंस. तो पहले इनपुट में हमें फिलअप करना होगा थिंग्स को. तो इनपुट रेंज,
फर्स्ट इनपुट रेंज मीन्स कि आपको डेटा की जितनी भी रेंज है, देखिए ए से लेके डी तक है, वो भी 6 सेल तक है, इस रेंज को हमने सेलेक्ट कर लिया है. आर यू गेटिंग इट? आफ्टर दिस ग्रुप्ड बाय कॉलम्स. तो अगर रोज होता तो रोज में क्या रहता, इस तरीके से लिखा होता, ये रोज है हमारी, बट हमारा डेटा कॉलम वाइज है, so we go for columns A, B, C, D. That's why we go for columns. Then labels in first row. Labels means name. आपका A, B, C, D names दिया गया है. फर्स्ट रो में जनरली नेम दिया जाता है, इसलिए उसे टिक कर दिया. अल्फा टेल्स अबाउट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कि जिस लेवल पे हमें हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होता है. दैट इज कॉल्ड 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, or you can say 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. इट टेल्स अबाउट द हाइपोथेसिस, और जो भी हमारा सैंपल डेटा है ये बताता है कि जो भी हमारा कंक्लूजन आ रहा है हाइपोथेसिस को लेकर, 95% we are true about this conclusion, and 5% हमारा रिस्क है, because this is overall sample data. ये सैंपल डेटा, इसलिए हमें रिस्क फैक्टर लेकर चलता है, क्योंकि सैंपल गलत भी हो सकते हैं, तो 5% we take the risk. फिर आउटपुट ऑप्शन के लिए न्यू वर्कशीट पे हमें आउटपुट चाहिए, इसलिए न्यू वर्कशीट, एक और वर्कशीट आ जाएगी जिसपे हमारा रिजल्ट आ जाएगा अनूपा का, वो हमारी ओपन हो जाएगी. यहाँ ओके क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पे हमारा अनोवा का रिजल्ट आ गया. क्या रिजल्ट आया है? समरी आई है A, B, C, D. कितनी ऑब्जर्वेशंस है? काउंट दे दी गई है, 5 ऑब्जर्वेशन A में है, B में है, C में है, D में है. इनका टोटल दे दिया है, सम दे दिया है. A का टोटल कितना है, B ब्रांड का टोटल कितना है, और D का कितना आ रहा है. एवरेज निकाल लिया है, A का एवरेज कितना है. वेरिएंस दे दिया गया है, एक्सेल में इजीली अपने आप ही आ जाएगा अनोवा. वेरिएंस दे दिया गया, A ब्रांड का वेरिएंस कितना आ रहा है, B का कितना आ रहा है. इसके बाद लास्टली जो हमको मिल रहा है वो है फाइनल अनोवा टेबल. अनोवा टेबल है. अनोवा टेबल में जो पहला है दैट इज सोर्स ऑफ वेरिएशन. सोर्स ऑफ वेरिएशन में बिटवीन द ग्रुप्स, तो ग्रुप्स हमारे कितने, 4 ग्रुप्स हैं, A, B, C, D, 4 ब्रांच है, उनका सम ऑफ स्क्वायर निकाला है. विद इन द ग्रुप्स चारों ब्रांचेस के टोटल का सम ऑफ स्क्वायर निकाला है. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकाल लिया है. 4 ग्रुप्स हैं, 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया. टोटल 20 ऑब्जर्वेशन है, तो 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया है. विद इन द ग्रुप्स है, जो एरर काउंट होता है उसमें हमारा टोटल में से जितने भी ग्रुप आ रहे हैं उसको माइनस करिए, 20 माइनस 4 16 होगा. तो जब आप इन दोनों का टोटल करोगे सो यू गेट द टोटल सम ऑफ स्क्वायर. जब आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को टोटल करोगे यू गेट द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम. नेक्स्ट कॉलम है मीन सम ऑफ स्क्वायर का, MS. मीन सम ऑफ स्क्वायर कैसे कैलकुलेट किया है? जब हम इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, बेसिकली मीन सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. तो हमें एक्सेल में ये डायरेक्ट कैलकुलेशन हमारे पास आ जाती है, इसका आंसर हमें डायरेक्ट मिल जाएगा. लेकिन अगर कैलकुलेटर से करना पड़ता है तो हमें मीन सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ता है कैलकुलेटर से. तो 68.2 डिवाइडेड बाय 3 आपका ये आ गया है, 492 डिवाइडेड बाय 16 30.75. नाउ इतनी हमारी कैलकुलेशन अनोवा के लिए है, जो कैलकुलेशन हमको टी टेस्ट में, कास्ट स्क्वायर में भी, F में भी ये सब करनी पड़ती है. नाउ लास्टली हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर द कैलकुलेटेड वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वैल्यू. यहाँ पे आपकी F टेस्ट की कैलकुलेटेड वैल्यू है दैट इज 0.7. F कैलकुलेटेड वैल्यू ये 5% लेवल है. अभी कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी कैलकुलेशन से मिली है, जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की कैलकुलेशन होती है. F टेबल वैल्यू, जो हम टेबल से फाइंड करते हैं वैल्यूज, वो विद द हेल्प ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम करते हैं. तो हियर इट इज ऑलरेडी रिटन 3.23 इज द टेबल वैल्यू. तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे एंड वी नो व्हाट इज द रूल ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस. When we accept the null hypothesis, then calculated value should be less than table value. Then only we can accept the null hypothesis. And here the same condition is showing. This is calculated value and this is table value.
and 0.7 is less than 3.2. That's why we can say we accept the null hypothesis here. Okay, we accept the null hypothesis. और null hypothesis क्या लिया गया है? null hypothesis लिया है mu1 equal to mu2 equal to mu3 equal to mu4. Are you getting it? This is the null hypothesis which tells about that mean lives are equal. मतलब brand A, brand B, brand C, brand D की mean lives का same. तो if we are accepting null hypothesis, तो हमारा ये डेटा ये प्रूव कर रहा है कि चारों ब्रांड्स की बैटरीज जो है सेम है. अगर हमें परचेज करना होगा तो हम कोई भी ब्रांड की बैटरी परचेज कर सकते हैं. कोई ना इसमें वर्ष आ रही है, कोई ना इसमें बेस्ट है. चारों ब्रांड सेम. इट प्रूव्स दिस. आर यू गेटिंग इट? यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपके पास सेम ऑब्जर्वेशन है तो आपने ये सॉल्व करना है. नाउ नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अनइवन ऑब्जर्वेशन. थोड़ा सा लंबा चला जाएगा क्लास, फिर ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो किसी को. 15 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे. ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3 अनइवन ऑब्जर्वेशन. ब्रांच 1 में 4 ऑब्जर्वेशन है, 2 और 3 में 3 ऑब्जर्वेशन. क्या है ये? A local bank has 3 branch offices. The bank has a liberal sick leave policy and a vice president was concerned with employees taking average of this policy. She thought that the tendency to take advantage depended on the branch at which the employee worked to see if there were differences in the time employees took for sick leave. She asked each branch manager to sample employees randomly and record the number of days of sick leave taken during time. ये रिकॉर्ड किया गया है sick leave लेने का. Then employees were chosen and the data were listed below. Do this data indicate a difference in branches? Branch 1 में sick leave ली गई है. Difference in the time for 50 sick leave. She asked the branch manager to sanction her and record the number of days. Okay. 15 दिन की sick leave ली है, 20 days की sick leave ली है, 19 की, 14 की. तो ब्रांच 1 में इतनी sick leaves ली गई हैं, ब्रांच 2 में इतनी sick leave गई हैं और ब्रांच 3 में इतनी. क्वेश्चन क्या है? Do this data indicate? क्वेश्चन क्या है? Do this data indicate a difference in branches? क्या सभी branches में difference आ रहा है या नहीं आ रहा है? sick leave लेने का पैटर्न जो है सब branches में अलग अलग है या सेम? तो they have assumed the null hypothesis. mu1 equal to mu2 equal to मतलब assumption क्या है कि तीनों branches में सेम पैटर्न, sick leave लेने का पैटर्न सेम आ रहा है. और ऑल्टरनेटिव क्या लेंगे? एटलीस्ट वन इज इनइक्वल, मतलब कोई एक जो है अलग. ओके, यही सेम डेटा मैंने एक्सेल पे पहले से नोट करके रखा है आपको समझाने के लिए. ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3. ओके, आर यू सीइंग हियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेम थिंग वी डू. डेटा एनालिसिस, सिंगल फैक्टर. ओके, अब यहाँ पे सेलेक्ट द रेंज. कॉलम वाइज हमारा डेटा है. लेवल इन फर्स्ट रो, नेम्स है हमारे ब्रांच 1, ब्रांच 2. 5% लेवल है. न्यू वर्कशीट पे हमें रिजल्ट चाहिए. ओके ऑप्शन किया है और हमारा रिजल्ट आ गया. ना सेम रिजल्ट है आपका. नंबर्स ऑब्जर्वेशंस दे दिए. ब्रांच 1 में हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशंस थी, 2 में 3 थी, 3 में भी 3 थी. सम ले लिया, एवरेज ले लिया, वैरियंस आ गया है. अच्छा, रिजल्ट देखिए. सम ऑफ स्क्वायर, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सब आ गया है. एफ टेबल, कैलकुलेटेड वैल्यू, एफ टेबल वैल्यू. तो मैंने क्या बताया था? नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है तो नल हाइपोथेसिस कम होनी चाहिए टेबल वैल्यू से, राइट? तो यहाँ पर क्या बता रहा है? नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होनी चाहिए कि रिजेक्ट होनी चाहिए?
बताएंगे? F table value is More value is more. value is more. So null hypothesis should be rejected, right? चलिए आंसर देखते हैं क्या आता है इसमें. So here the same calculated value is coming and the decision is we shall reject the null hypothesis. Understand? We shall reject the null hypothesis. तो अगर null hypothesis reject करी है तो कुछ तो accept करना होगा. Accept क्या करेंगे हम? Alternative hypothesis. Decision हमारा किस पे जाएगा? कि all are not same. All branches have not same pattern. किसी एक में तो अलग है या हो सकता दो में अलग हो. अब ये हमें ढूंढना पड़ेगा कि किस में अलग है. फिलहाल वन वे अनोवा आपका यहीं पे स्टॉप होता है. वन वे अनोवा के आगे एनालिसिस होगी वो आपकी अलग जाएगी. वो टी टेस्ट से हमको फिर शो करना पड़ेगा कि एक मिनट ओके. तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को? Is that clear now? मैम एक्सेल वाला जो है मैम एक्सेल वाला प्रोसेस जो है हाँ जी बेटा. वो हमारा मेन प्रोसेस तो है नहीं. हमारा जो ये स्टेप यहाँ बताया हमको इसी से करना होगा. बेटा मैं ये कह रही हूँ मेन प्रोसेस भी मैं आपको बता दूंगी. इसमें दिक्कत की बात नहीं है. मेन प्रोसेस मैं बताऊंगी. मैं फिलहाल आपको एक्सेल पे इसलिए बता रही हूँ कि तब आप लोग जब मेन प्रोसेस प्रैक्टिकल फाइल अपनी बनाओगे तो मेन प्रोसेस से करोगे. समझ में आ रहा है? जो फाइल में आपको काम करना है वो मेन प्रोसेस से करना है. लेकिन आप कम से कम अपने आंसर्स अपने डिसीजंस को टैली तो कर सकते हो ना एक्सेल से. मान लीजिए कैलकुलेशन कहीं पे आपकी मिस्टेक हो गई तो आपको पता चल सकता है कि एक्सेल तो आंसर अलग दे रहा है और आपकी कैलकुलेशन अलग बता रही है. दैट मीन्स कि कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक है. राइट? तो एक्सेल आपके लिए इजी ऑप्शन है अपने कैलकुलेशन को चेक करने के लिए. अगर आप स्टार्टिंग से चेक करना शुरू करोगे इट विल बी फाइन. बेटर है कि आप एक्सेल पे वो डेटा पुट करो, ऑप्शन सेलेक्ट करो, आंसर आपके पास आ जाएगा. फिर आपके जो भी प्रैक्टिकल फाइल में जो आपने कैलकुलेशन करी उसे कभी कर लेना. इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ. अंडरस्टैंड? अपनी मार्किंग स्कीम बता देंगे क्या? क्योंकि इस बार एग्जाम होंगे नहीं तो कैसे मार्किंग होगी? मार्किंग स्कीम चलिए नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. मार्किंग स्कीम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है? अभी फिलहाल आज की क्लास में कुछ समझ में आया या नहीं? हाँ, मुझे ये समझ में आया कि आपको ग्रेजुएशन का कुछ भी नहीं आता. लेकिन आपको ये समझ में आया है वन वे अनोवा? नहीं आया है तो असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद जो मैंने शीट्स डाली हुई है, वर्ड फाइल डाली है, पीडीएफ डाला हुआ है, उसे पढ़ना. लेकिन असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद. ठीक है? Yes. ओके. अटेंडेंस साइन कर देना. मैंने सेक्शन में अटेंडेंस डाल के रखा हुआ है. प्लीज साइन द अटेंडेंस. एंड नाउ आई एम लीविंग द क्लास. Excuse me, ma'am. थैंक यू. मैं हाँ हाँ बेटा बोलो. Ma'am, we have to write assignment or we can, do it in PPT form or in Word form. Or we have to write it in... कॉपी में लिखना है क्योंकि लिखोगे नहीं जब तक तो रिवाइज नहीं कर पाओगे. Okay, You ma'am. have to write in copy, click that photo of your copy, upload करना होगा आपको assignment section में. I'm just giving you in Google Classroom the assignment section where you can upload your assignments. Okay? Okay, ma'am. Okay. और किसी को कुछ पूछना है? Okay, now I'm leaving.